हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है नीट पढ़ी, वेयर वी प्रोवाइड यू विद डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज, नीट preparation tips and tricks and lecture videos to help you in your upcoming NEET exam preparation. And that's what we are going to do today. We are going to provide you with all the diagrams of circulatory system, NCERT Human Physiology Class 11 Chapter 3rd. So we have covered digestive system, we have covered respiratory system, and today we are going to cover all the diagrams of circulatory system. The basic purpose of these diagram videos is to help you remember the diagrams of NCERT biology, because a lot of questions come in the NEET exam from NCERT biology diagrams, and also to help you grab some concepts and revise those concepts through the diagrams. So without wasting much time, let's get started. So this is the first diagram of NCERT textbook, and the first diagram is talking about the formed elements. कौन-कौन से different cells है हमारे blood में, वो ये diagram बताने वाला है. And the first formed element that this diagram is talking about is RBC. What does RBC stands for? It stands for red blood cells. Easy to remember, red blood cells. क्यों? क्योंकि ये red color के होते हैं. So first question that comes from RBC is ये red color के होते क्यों है? What is the reason because of which it is in red color? So the reason is the presence of pigment called as hemoglobin. So hemoglobin नाम का एक pigment RBCs में present होता है, because of which RBCs are red in color. So ये pigment कितने amount में present होता है? So what is the normal hemoglobin range? So the normal hemoglobin range is from 12 to 16 grams per 100 ml, या per deciliter भी आप इसे बोल सकते हैं. 12 to 16 grams per 100 ml, that is the normal hemoglobin content of our body. और इससे अगर कम होगा तो क्या होगा? इससे अगर कम होगा तो patient will have, या the person will suffer from a disease called as anemia. Fine. So that is about hemoglobin. दूसरी चीज आरबीसी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो है इसकी लाइफ स्पैन. सो कितने दिनों तक आरबीसी जिंदा रह सकता है? सो द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, रिमेंबर, 120 days. So after 120 days, each and every RBC will die. And where do these RBCs die? What is the graveyard of RBC? So the graveyard of RBC is an organ which is called as spleen. So remember, spleen is the graveyard of RBC. And finally, the last important question that might be asked from RBC is, what is the count of RBC? So remember, the count of RBC is 5 to 5.5 million per millimeter cube. So remember, whenever we are talking about counts, चाहे वो platelet count हो, चाहे वो RBC count हो, चाहे वो WBC count हो, हम हमेशा कितने millimeter cube of blood में बात करेंगे. Why so? क्योंकि हम total absolute count नहीं बता सकते, because these are cells. अगर कोई बोलेगा कि पूरे बॉडी में कितने सेल्स है, so they will go into trillions, बहुत ज्यादा काउंट आएगा, तो वो बताया नहीं जा सकता. इसीलिए 1 millimeter cube of blood has how many cells, वो हम बताते हैं. 1 millimeter cube of blood has 5 to 5.5 million. 10 to the power 6 means million. 5 to 5.5 million RBCs in our body. Fine. So that is about RBC that you need to remember. The next formed element of this diagram is platelet. So what is the function of platelet? Function of platelet is blood clotting. मतलब ये कि blood clot formation में platelets का important role होता है. Platelets आते कहां से है? Platelets are nothing but fragments of megakaryocytes. Remember that again, megakaryocytes, उसके fragments होते हैं हमारे platelets. And finally, platelets का count कितना होता है? If someone asks in the question, so remember, 1,50,000 to 3,50,000 कितने blood में? Per millimeter cube of blood. Again, the per millimeter cube is same for each and every cell. Platelet count, remember, it is 1,50,000 to 3,50,000 per millimeter cube of blood. And finally, the last type of cells that might be asked in the exam, जो कि आखिरी के ये cells represent कर रहे हैं, they are your WBCs. Fine, WBCs or the white blood cells. The first question of the WBC that might come is, what is the count of WBC? कितने WBCs body में हैं? So WBC count अगर कोई बोले तो it is 6,000 to 8,000 per millimeter cube. Per millimeter cube, 1 millimeter cube blood में हमारे पास 6,000 to 8,000 WBCs present होते हैं. अब WBCs दो टाइप के basically
होते हैं। एक होते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, और दूसरे होते हैं हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते। सो इस डायग्राम में पहले 3 ग्रैन्युलोसाइट्स है, उसके बाद के 3 ए ग्रैन्युलोसाइट्स है जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो WBCs के बारे में पता होनी चाहिए वो है इनका परसेंटेज। सो रिमेंबर कौन सा सेल कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है। अगर आपको सारा परसेंटेज भी नहीं पता हो तो सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं 3 इंपॉर्टेंट परसेंटेज अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट इज योर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं बॉडी में। सो सबसे ज्यादा परसेंटेज WBC का यही बनाते हैं, दैट इज अबाउट 60 to 65% मैक्सिमम। फाइन, मैक्सिमम WBCs, ऑब्वियसली बाकी सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम WBCs आर न्यूट्रोफिल। मिनिमम WBCs कोई पूछे सबसे कम WBCs कौन से होते हैं, so, सबसे कम WBC हमारे होते हैं बेसोफिल्स, एंड बेसोफिल्स कितने होते हैं 0.5 to 1%, बस 0.5 to 1% बेसोफिल्स होते हैं। नेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। सो लिम्फोसाइट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स की अगर कोई बात करें तो 20 to 25% आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन अगर आप लोग याद रखना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, तो 2 ही टाइप के सेल्स आपके रह गए अब, इओसिनोफिल्स और monocytes. So eosinophils form somewhere between your 2 to 3% of WBC and monocyte form somewhere between 6 to 8% of WBCs. So ये है आपके percentages of WBCs जो आप लोग को याद रखने हैं for your NEET exam. नेक्स्ट जो चीज इस डायग्राम से पूछी जा सकती है वो है आप कैसे डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आरबीसी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो छोटे हैं और पूरा का पूरा रेड कलर का कोई न्यूक्लियस नहीं है। प्लेटलेट्स आइडेंटिफाई करना अगेन डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये सिंपली आपके फ्रैगमेंट्स है सेल के, तो वो भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है स्पेशली इन WBCs, और WBCs में भी 2 चीज जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं वो है इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल आप समझ जाएंगे क्योंकि छोटा सा सेल होगा, पूरा का पूरा ब्लू अपेयर होगा बेसोफिल। सबसे बड़ा सेल मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स आपको पहचान में आ जाएंगे क्योंकि काफी मेजॉरिटी रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज अकोमोडेटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ दीज सेल्स, और टी और बी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बट एक चीज जहां पे कंफ्यूजन अक्सर होती है वो है इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल में। सो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है? सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके न्यूक्लियस को देखेंगे। फाइन, सो वी लुक एट द nucleus of neutrophil, nucleus of eosinophil. So what is happening? So nucleus of eosinophil अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऐसा हेडफोन शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। इस डायग्राम में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है, ये 2 लोब हो गए और बीच में ये हेडफोन का बार आ जाएगा। सो हेडफोन शेप न्यूक्लियस इओसिनोफिल में आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल में कैसे न्यूक्लियस होंगे? न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होंगे। फाइन, न्यूक्लियस एक ही होगा लेकिन ऐसे कनेक्टेड लोब्स दिखेंगे आपको। सो इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये एक लोब हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो 2 से ज्यादा ही लोब्स यूजुअली होंगे तो वो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। सो न्यूक्लियस में कितने लोब्स प्रेजेंट है उसके बेसिस में आप इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करना है? सो रिमेंबर बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं ना। IgA, IgG, IgE ये सारे एंटीबॉडीज हमारे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए साइटोप्लाज्म में। मतलब ये कि बी लिम्फोसाइट के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर तो ये सब नहीं बनेगा ना, साइटोप्लाज्म में बनेगा। सो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को डिस्टिंग्विश करने का यही फीचर होता है कि टी लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म उसने अकोमोडेट कर लिया। बी लिम्फोसाइट में भी न्यूक्लियस बड़ा है लेकिन टी लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म वहां पे प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी ऑफ दीज सेल्स। कैसे कौन सा सेल कहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
The next that we have is a blood grouping and donor compatibility table. अब ये टेबल आपको अगर सीधा रटना है तो इजी है, आप रट सकते हैं कि ए के साथ कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा तो एंटी बी रहेगा, और डोनर जो भी बी नहीं है वो डोनर होगा। अगर ऐसे करके आप रटना चाहेंगे तो आप रट सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये टेबल समझना है तो जस्ट आई विल टेक योर 5 मिनट्स कि आपको ये टेबल कैसे समझ के याद करें, आपको मैं बता दूं। सो ये टेबल समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड कैसे होती है। सो अगर हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए है किसी आदमी का, इट मींस कि उसके आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजेंस प्रेजेंट है। फाइन। अगर कोई बोलता है कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है, सो अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप बी है, इट मींस कि उसके सरफेस में बी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। अगर कोई बोलता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मींस कि उसके आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में उसके ए एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे, सो दैट वुड बिकम ए बी। और कोई बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप मींस कि उसके आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है। सो यहां पे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन, वेयर आर एंटीजेंस प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। ये चीज याद रखना, एंटीजन प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होता, एंटीजन आरबीसी सरफेस में प्रेजेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन। सो रिमेंबर, एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। फाइन, मतलब ये कि हमारे पास ऐसे एंटीबॉडीज है जो प्लाज्मा में घूम रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज घूम रहे हैं। यहाँ सबको मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, बट डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज घूम रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में। और इन एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है, क्या काम है इन एंटीबॉडीज का? एंटीबॉडीज का काम यह है कि दीज विल आइडेंटिफाई फॉरेन सेल्स एंड दे विल डिस्ट्रॉय दीज फॉरेन सेल्स। अगर बाहर से कोई भी सेल आ रहा है जो आपकी बॉडी का नहीं है, तो ये एंटीबॉडीज उनको आइडेंटिफाई करेंगी और उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टेबल विद दिस बैकग्राउंड। सो अगर एक पेशेंट है, एक बंदा है विद ब्लड ग्रुप ए, इट मींस कि उसके सरफेस में क्या है? एंटीजन ए, मींस दिस क्लास, राइट। अब अगर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगी, मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, तो उसके अपने सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, इसीलिए उसके प्लाज्मा में कभी भी एंटी ए नहीं मिलेगा, उसके प्लाज्मा में मिलेगा एंटी बी। और जब उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप वाला या जिस ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन हो वो कभी भी उसे नहीं दिया जा सकता। और बी एंटीजन हमारा बी ब्लड ग्रुप में भी है और ए बी ब्लड ग्रुप में भी है। इसका ठीक ऑपोजिट होगा ब्लड ग्रुप बी के लिए, उसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटी ए प्रेजेंट होगा। ए बी के केस में क्या होगा? ए बी के केस में हमारे पास दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। मतलब अगर उसमें एंटी ए प्रेजेंट होगा या एंटी बी प्रेजेंट होगा, दोनों कंडीशन में हमारी खुद की सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी। सो वी डोंट वांट दैट। तो हमारे पास प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। और ओ के लिए ठीक ऑपोजिट हो जाएगा ए बी का। मतलब ये कि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो बॉडी नहीं चाहेगी कि कोई भी एंटीजन ब्लड में आए। जो हमारा बॉडी नहीं चाहेगी कि कोई भी एंटीजन आए, सो उसके लिए हमारे पास सारे टाइप के एंटीबॉडीज होने चाहिए। सो अगर इतना आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा तो अब आपको डोनर कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगा, ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हमेशा याद रखना, डोनर की जब भी हम बात करेंगे तो आप एंटीबॉडीज देखेंगे। मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को ए ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, उसको कौन सा ब्लड दूं, सो रिमेंबर ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटी बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। सो अगर एंटी बी प्रेजेंट है तो बी एंटीजन वाला कोई भी ब्लड उसे नहीं दिया जा सकता। सो बी भी नहीं देंगे, ए भी नहीं देंगे, तो उसे हम देंगे ए ओ। और वैसे ही आप बाकी सबके भी डिराइव कर सकते हैं। सो यहां पे क्योंकि हमारे पास एंटी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट होंगे ओ ब्लड ग्रुप में, सो ओ ब्लड ग्रुप का डोनर सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी और ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता ब्लड। और ओ ब्लड ग्रुप दे सबको सकता है ब्लड। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। कोई एंटीजन है ही नहीं तो वो सबको ब्लड दे सकता है। सबको ब्लड दे सकता है मतलब क्या हो गया? ओ इज योर यूनिवर्सल डोनर। याद कैसे रखना अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो डोनर में ओ आता है, सो ओ ब्लड ग्रुप इज डोनर। और दूसरा यूनिक ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी इज
रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है, रेसिपिएंट मतलब वो सब से खून लेगा। आप देखो ए बी से खुद ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, और सबसे क्यों ले पा रहा है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी वो सब्सटेंस है जो कि बाहर से आने वाली चीजों को रिजेक्ट करेगी। जब एंटीबॉडी ही नहीं है वहां पे, तो कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो वो मना ही नहीं करेगी। जब कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। सो रिमेंबर द एमसीक्यू दैट कैन बी आस्क्ड ओवर हियर इज which is universal, who is the universal recipient, who is universal donor. So remember this, universal recipient is RAB and universal donor is RO. ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट इस क्वेश्चन का, लेकिन नीट क्योंकि कंपटीशन है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दे देंगे और यहाँ पे RH एंटीजन भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि O नेगेटिव और O पॉजिटिव, पूछा क्वेश्चन में यूनिवर्सल डोनर कौन है, और उन्होंने ऑप्शन में O नेगेटिव भी दे रखा है, O पॉजिटिव भी दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो यूनिवर्सल डोनर करेक्ट आंसर होगा हमारा O नेगेटिव। सी यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप बना क्यों? यूनिवर्सल डोनर वो इसलिए बना क्योंकि उसके सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं था। ओ नेगेटिव के सरफेस में RH एंटीजन भी नहीं है, सो ये यूनिवर्सल डोनर बन जाएगा। लेकिन O पॉजिटिव में ABO एंटीजन तो कोई भी नहीं है, लेकिन RH पॉजिटिव एंटीजन जरूर प्रेजेंट है। सो O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। यूनिवर्सल डोनर हमारा O नेगेटिव है, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। नो एंटीजन इज प्रेजेंट, फाइन। क्योंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल डोनर। अब ऐसे ही करके यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा आप बताओ? यू कैन जस्ट लॉजिकली थिंक एंड लॉजिकली डिसाइड यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा। ए बी की बात नहीं कर रहा मैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव में यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इन ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमने किस बेसिस में डिसाइड किया कि कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा? या तो आप अगेन एंटीजन देखना चाहो तो सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंट हो, या कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो, फाइन। सो सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंट हो में क्या आ जाएगा? ई एंटीजन, पी एंटीजन एंड RH एंटीजन। सारे के सारे एंटीजन किस में प्रेजेंट है? ए बी में, ए बी पॉजिटिव में। सो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। या एंटीबॉडी के फॉर्मेट में देखना चाहो तो अगर सारे एंटीजन प्रेजेंट है तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो इनमें सारे के सारे एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी। ऑल एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो ठीक ऑपोजिट है डोनर का, मतलब O नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। हर किसी से वो ब्लड लेगा। सो इतना आप लोगों ने इस डायग्राम से, इस टेबल से डिराइव करके याद रखना है। This is the next diagram of NCERT textbook and this diagram gives the complete structure of heart. Heart का पूरा structure ये बता रहा है। So remember, अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बना के बताऊं तो आपको वो डायग्राम याद रखने में भी आसानी होगी और एक इलस्ट्रेटिव मैनर में आप चीजें समझ भी जाएंगे, फाइन। सो मैं हार्ट को यहाँ पे एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक्चुअल हार्ट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट आई एम ड्राइंग ओवर हियर, बट समझने के लिए आपके लिए ये हार्ट काफी होगा। So this is the heart that I'm trying to show you guys over here. So diagram में दिख रहा है आपको कितने ventricle है, कितने chambers है हमारे पास? We have 4 chambers. We have 2 ventricle. This is the right side of the heart. This is the left side of the heart. So this is the left atria. This is the right atria. This is the left ventricle and this is the right ventricle. Fine. अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और सबसे पहले एट्रिया और वेंट्रिकल से भी पहले एट्रिया और एट्रिया के बीच में यहां पे ये वॉल प्रेजेंट है, फाइन। सो दिस वॉल बिटवीन एट्रिया एंड एट्रिया, नीचे वाला नहीं, एट्रिया एंड एट्रिया इज नोन एज इंटर एट्रियल। इंटर एट्रियल, नेम इटसेल्फ सेज इट, 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, फाइन। एंड द वॉल बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स इज व्हाट? इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर ventricular, between 2 ventricles, interventricular septum, फाइन। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? एट्रियोवेंट्रिकुलर
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। फाइन। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में बीच में ऑरिफिस इज प्रेजेंट। ऑरिफिस मतलब एक छोटा सा छेद है। अगर आपको यहां पे दिखाऊं तो ये राइट साइड वाला ऑरिफिस है, ये लेफ्ट साइड वाला ऑरिफिस है। ये ऑरिफिस प्रेजेंट क्यों है? ये ऑरिफिस प्रेजेंट इसलिए क्योंकि ब्लड ने जाना है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ऑब्वियसली एट्रिया टू एट्रिया ब्लड ने नहीं जाना, लेफ्ट और राइट साइड, लेकिन राइट साइड की एट्रिया से राइट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड ने जाना है और लेफ्ट साइड की एट्रिया से लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में भी ब्लड ने जाना है। सो यहां पे हमारे आ जाते हैं छेद, दो छोटे छोटे छेद, एंड दीज holes or orifices are guarded by valves. Fine. So on right side we have a tricuspid valve, and on left side we have a bicuspid या फिर bicuspid or mitral valve. Cuspid means there are two flaps. Cusps basically means flaps. Fine. So tricuspid मतलब 3 flap है, bicuspid मतलब 2 flap है. The next thing of this diagram that I will now draw is, first I'll erase few things out of here. The next thing that I'm going to draw is कैसे यहां से outflow होंगी चीजें. Outflow मतलब कैसे हमारे ventricle से अब blood निकलेगा. Fine. Again, that's an illustrative diagram that I'm drawing for you guys. So आपको उतना ज्यादा complication यहाँ पे दिखेगा नहीं. So ventricle से निकलता हुआ एक vessel बनाया और atria से निकलता हुआ एक vessel बना दिया मैंने. फाइन. सो जो वेंट्रिकल से निकल रहा है ये वेसल, ये हो जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और जो सॉरी दिस इज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है वो हो जाएगा हमारा एओर्टा. अभी इतना सिंप्लीफाइड दिखा रहा हूं, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड होता नहीं है, निकलता घूम के है, काफी ज्यादा घूम के. ये एओर्टा ऐसे घूम के ऊपर से निकलता है एओर्टा, लेकिन आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखा रहा हूं यहाँ पे. सो यहाँ पे भी हमारे पास दो वाल्व्स प्रेजेंट है. ये वाल्व्स क्या करेंगे? ऑरिफिस को गार्ड करेंगे कि कितना ब्लड कब जाना है. सो इन वाल्व्स को हम क्या बोलते हैं? इन वाल्व्स को हम बोलते हैं जिस जिस लोकेशन में ये प्रेजेंट है. सो एओर्टा में ये प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे एओर्टिक वाल्व. दिस इज आवर एओर्टिक वाल्व. एंड ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी या पल्मोनिक. व्हाट इज इट कॉल्ड? पल्मोनिक वाल्व. फाइन. सो ये हो गए हमारे सारे के सारे वाल्व्स और वॉल्स जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ एक चीज जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, क्योंकि हम बोलते हैं वेन्स क्या होती है, राइट साइड के साथ एसोसिएट करते हैं यूजुअली, और जो आर्टरीज है इनको हम लेफ्ट साइड के साथ एसोसिएट करते हैं. अब ये कोई बोलता नहीं है कि आपको इसके साथ एसोसिएट करना है, लेकिन पढ़ते टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में चीजें बार बार आर्टरीज आ रही होती है और राइट साइड में बार बार वेन्स आ रही है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि सारी की सारी वेन्स राइट साइड के साथ एसोसिएटेड है, सारी की सारी आर्टरीज हमारी लेफ्ट साइड के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन ऐसा नहीं है. वेन्स एक्चुअली में होती क्या है? जो भी ब्लड वेसल्स आपका ब्लड लेके आ रही है इनटू द हार्ट, अगर कोई भी ब्लड वेसल आपका हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रही है तो उसे हम वेन्स बोल देंगे, और कोई भी वेसल हार्ट के बाहर अवे फ्रॉम हार्ट, लेफ्ट और राइट साइड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बस हार्ट की बात कर रहा हूं जनरल, अवे फ्रॉम हार्ट, अगर कोई भी ब्लड वेसल अवे फ्रॉम हार्ट जा रही तो उसे हम बोल देंगे क्या? आर्टरी. फाइन. सो अगर आप यहां पे देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड हार्ट से लंग की तरफ लेके जा रही है. सो आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट से बाहर की तरफ निकल रही है. सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट आर्टरी एंड नॉट अ वेन. पल्मोनरी मतलब तो लंग के पास जा रही है इसलिए, लेकिन क्योंकि ये वेसल हार्ट से निकल रही है वी आर कॉलिंग इट एन आर्टरी. एंड सिमिलरली कम्स विद पल्मोनरी वेन्स जो ऊपर से आएंगी. पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जब बोल रहे हैं तो वेन्स मतलब दे आर कमिंग इनटू द हार्ट. Fine. So pulmonary veins comes into the left ventricle. Fine. Pulmonary veins come into the left ventricle and left atria. So sorry. Pulmonary vein comes into the left atria and from right ventricle our pulmonary artery leaves. So ये तो हो गया ventricles के connection के बारे में. Now what happens with the atria? Atria को भी blood कहीं ना कहीं से मिलेगा. So atria को blood कहाँ से मिलेगा? So right side की अगर हम बात करें तो हमारे पास vena cava है. We have superior vena cava. We have inferior vena cava, SVC and IVC. So superior vena cava ऊपर से blood लेके आएगा, inferior vena cava lower limbs और lower part of body से blood लेके जाएंगे. And left atria को कहां से blood मिलता है? Left atria को blood मिलता है pulmonary vein से. So that is the complete layout जो कि represent किया गया है इसमें muscular system और vessels की अगर हम बात करें इस heart में तो. Now I'll just rub few things of this diagram so that आपको मैं अब यहाँ पे electrical system दिखा सकूं. सो अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको मैं यहां पे दिखाऊं, सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर हम बात करें
सो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको मैं फिर से रेक्टेंगल बना के एक दिखा देता हूं. सो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम वॉल्स पे चलता है. मतलब ये कि कुछ कुछ ऐसे मसल सेल्स हैं जो कि मॉडिफाई हो गए और ये अब इंपल्स जनरेट कर रहे हैं. सो सबसे पहला यहां पे एक नोड है. दिस इज योर एसए नोड. यहां पे दूसरा नोड है. आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. ये है एवी नोड और यहां से फिर ऐसे फाइबर्स निकलेंगे और ये पूरे मसल्स में फैल जाएंगे. फाइन. सो ये लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट है. ये है एसए नोड, सैन भी हम कहते हैं. ये है एवी नोड. ये लोकेशंस आपको पता होने चाहिए कि कहां पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है. सो लोकेशन अगर हम बोले एसए नोड का, इट इज ऑन द राइट अपर कॉर्नर. राइट अपर कॉर्नर जस्ट नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा. या एक तरीके से मैं बस वेना कावा अगर बोलूं, सुपीरियर इंफीरियर ना स्पेसिफाई करते हुए. सो टुवर्ड्स द नियर द ओपनिंग ऑफ वेना कावा, राइट अपर कॉर्नर में ये लोकेटेड है. एवी नोड कहां पे लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द लोअर कॉर्नर, रादर लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. यहां पे राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट atrium, remember that, left lower corner of right atrium, and that is near the tricuspid valve. tricuspid valve के ठीक पास AV node होगा. फंक्शन क्या है? SA node is your पेस मेकर. मतलब ये है कि हार्ट किस रेट में बीट करेगा वो SA node डिसाइड करेगा. एसए नोड से इंपल्स एवी नोड में जाएगा. एवी नोड फिर उस इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कर देगा. सो एवी नोड आगे किसे भेजता है? वो भेजता है एवी बंडल को. एवी बंडल, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल. अब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल मैंने नीचे जाके डिवाइड करा है, वो यहीं से डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं. दे डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल्स. सो दीज लेफ्ट एंड राइट बंडल्स आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ His. We have the bundle of His, the left and the right bundles, and after the left and the right bundles ये further divide होंगे giving small fibers. जो भी small fibers यहाँ पे बनाया मैंने, these are your Purkinje fibers. फाइन. सो फाइनली एसए नोड से जो इंपल्स जनरेट होता है, यहां से इंपल्स जनरेट होगा वो जाएगा एवी नोड में. एवी नोड से एवी बंडल से वो लेफ्ट साइड भी आएगा और वो राइट साइड भी जाएगा और फाइनली पर्किंजी फाइबर्स के थ्रू वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा और पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टम फॉर यू गाइस. The next is diagram of an ECG. So first, what does ECG stand for? ECG stands for two things. Depends कि हम मशीन की बात कर रहे हैं या हम रीडिंग की बात कर रहे हैं. सो अगर हम मशीन की रीडिंग की बात कर रहे हैं, सो ECG stands for इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. फाइन. और अगर हम उस मशीन की बात करें जो ECG निकालने वाला है, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो रिमेंबर दीज ग्राफ एंड ग्राम. यहां मैंने उल्टा नहीं बोला है. मशीन को हम ग्राफ बोलते हैं और रीडिंग को हम ग्राम बोलते हैं. यूजुअली ऐसा नहीं होता. यूजुअली जो भी ग्राफ होता है इट रिप्रेजेंट्स टुवर्ड्स द रीडिंग, बट ECG के केस में ये ठीक उल्टा हो जाएगा. दूसरी चीज जो ECG के बारे में आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि व्हाट डज ECG रिप्रेजेंट. रिमेंबर, ECG हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है. इट डज नॉट रिप्रेजेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मतलब ये है कि the P wave, it represents the electrical activity that is taking place in atria. It is not representing atrial systole. Remember, P wave represents what? Atrial depolarization. डीपोलराइजेशन मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन मतलब ये है कि एसिड नोड ने सिग्नल जनरेट किया, वो सिग्नल एट्रिया तक पहुंच गया और वो पूरा सिग्नल एट्रिया में फैल रहा है. अभी सिग्नल फैल रहा है, सो इसे हम एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं. पी वेव डज नॉट रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टली. सो ये लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड सिस्टली, या डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन एंड डायस्टली. सो फर्क ये है कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, सिस्टली डायस्टली एक मस्कुलर एक्टिविटी है, और हमारा ECG it represents your electrical activity of heart. So what are these electrical activities that are being represented over here? So electrical activities that are being, first of all आपका क्या होगा? एसिड नोड इंपल्स जनरेट करेगा.
सो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, फाइन, ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया और वो इंपल्स पूरा का पूरा एट्रिया में फैल गया, फाइन, एट्रिया में फैला और एवी नोड तक भी पहुंच गया वो इंपल्स। सो जब एट्रिया में फैल रहा है तो आएगा हमारा पी वेव। ऐसे नोड के इंपल्स छोड़ने पर पी वेव नहीं आएगा और वो एवी नोड में पहुंचने पर पी वेव नहीं आएगा। जब वो इंपल्स पूरा एट्रिया में फैल रहा है तब हमारा आएगा पी वेव। एंड व्हाट डज पी वेव रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स atrial depolarization, and like I already said, depolarization means your electrical activity of atria, फाइन। सो अब वो एवी नोड तक इंपल्स पहुंच गया, एवी नोड से इंपल्स आगे जाएगा, आगे कहां पे जाएगा? वो एवी बंडल में जाएगा, फिर वो बंडल ऑफ हिस में जाएगा और बंडल ऑफ हिस से पर्किंजी फाइबर्स और पर्किंजी फाइबर्स से पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा, वेंट्रिकल स्प्रेड, फाइन। वो इंपल्स हमारा वेंट्रिकल में स्प्रेड हो गया। तो जब वो इंपल्स वेंट्रिकल में स्प्रेड हो रहा है तब हमारा आएगा QRS कॉम्प्लेक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फाइन। ventricular depolarization is being represented by the QRS complex। फिर आता है हमारा T wave। Now what does T wave represent? क्या T wave ये represent कर रहा है कि impulse हमारा वापस जा रहा है? नहीं, impulse वापस नहीं जाता, impulse ventricles तक पहुंचा और वहां पे impulse die down होना start होता है, die out, impulse starts dying out। So ये dying out of impulse हमारा T wave represent करेगा और इसे हम बोलेंगे ventricular repolarization। Remember again, I will tell you, ventricular depolarization is not equal to ventricular systole and ventricular repolarization is not equal to ventricular diastole। Systole, diastole are muscular activities and we are talking about electrical activities over here। So does that mean कि हम muscular activity ECG से read ही नहीं कर सकते? नहीं, हम ECG से मस्कुलर एक्टिविटी भी रीड कर सकते हैं। कैसे? आपको मैं बताता हूं। पी वेव में क्या हुआ? एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, फाइन। सो अगर आपको मैं यहां पे दो एट्रिया बना के दिखाऊं, सो एट्रिया में वो इंपल्स पूरी तरह फैल गया, फाइन। अब वो इंपल्स आगे एवी नोड से आगे की तरफ भी जाएगा। सो यहां पे हमारा एसए नोड है, राइट, दिस इज आवर एवी नोड एंड दिस इज आवर एवी बंडल। एवी बंडल से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ये इंपल्स अभी पूरा फैल रहा है। सो जब इंपल्स हमारा एट्रिया में फैल रहा है और इंपल्स हमारा एट्रिया में पूरा फैल चुका है, उसके बाद क्या होगा? एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो एट्रिया हमारा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब हमारा एवी बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स की तरफ इंपल्स फैल रहा है। सो इफ यू सी दिस फ्रॉम पी वेव टिल क्यू वेव, हमारा कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख नहीं रहा। सो इस टाइम पे एक्चुअली क्या हो रहा है? हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द टाइम वेयर यू विल फाइंड एट्रियल सिस्टली, फाइन। अब क्या होगा? अब होगा हमारा इंपल्स एवी बंडल में आ गया, एवी बंडल से वो फैल के पूरा वेंट्रिकल्स में चला गया। सो दीज आर द वेंट्रिकल्स दैट वी हैव ओवर हियर। और एक बार इंपल्स पूरा वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल अब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। So now ventricle will start contracting। एक बार impulse आ गया तो ventricle contract करना start कर देगा। So from your R wave till the end of T wave, till the end of T wave is the part where the ventricle contracts, fine। So अगर किसने पूछा कि ECG में ventricular systole कहां पे हो रही है, so tell him from R segment, from the R wave till the end of the T wave, from R to T we are having our ventricular contraction। इस टाइम पे हमारा ventricle contract कर रहा है। So ventricle relax कब करेगा? ventricle relax करेगा from T wave। एक बार T wave खत्म हो गया उसके बाद से this is the P wave, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके QRS ऐसे फिर से बनेगा, है ना। So from T wave till the initiation of Q wave, this is QRS। From T wave till the initiation of Q wave we have ventricle relaxing, fine। So that is the phase where the ventricle will relax, remember that। And finally atria कब relax करेगा? atria हमारा relax करेगा throughout this, मतलब Q wave से दूसरे P wave तक atria relax करेगा, atrial diastole
will be there. So I'll just tell you guys, जो भी मैंने अभी बताया आपको मैं एक नोट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूं. So मैंने क्या क्या बताया. सबसे पहले तो मैंने P वेव की बात की, फिर मैंने QRS कॉम्प्लेक्स की बात की, फिर मैंने T वेव की बात की, और ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है. So P wave represents what? Atrial depolarization. Right. QRS complex represents what? Ventricular depolarization. And what does T wave represents? T wave represents your ventricular repolarization. And all these things are nothing but electrical activity. These are electrical activity. Fine. So this has been provided in NCERT as well. अब मस्कुलर एक्टिविटी की अगर कोई बात करे, सो मस्कुलर एक्टिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए रिमेंबर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एट्रियल सिस्टली. सो एट्रियल सिस्टली कहां से कहां तक हो रहा है? फ्रॉम पी वेव टू क्यू वेव, दैट इज योर एट्रियल सिस्टली. देन कम्स आवर वेंट्रिकुलर सिस्टली. सो वेंट्रिकुलर सिस्टली कहां से हो रहा है? यू कैन से फ्रॉम क्यू वेव, एग्जैक्टली क्यू वेव से नहीं, क्यू वेव के थोड़ा बाद से होता है, क्यू वेव टू योर टी एंड, जहां तक टी खत्म होगा वहां तक. देन वी कैन सी वेंडर्स आर एट्रियल डायस्टली. एट्रिया रिलैक्स कब कर रहा है? एट्रियल डायस्टली कब होगा? तो एट्रियल डायस्टली होगा फ्रॉम क्यू वेव टिल नेक्स्ट पी वेव स्टार्टिंग, राइट. और हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टली कब होगा? Ventricular diastole. So ventricular diastole happens from what? T end till Q starting. फाइन. सो यहां से हो जाएगा हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टली. ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कि एट्रियल सिस्टली कब हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टली कब हो रहा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है. मस्कुलर एक्टिविटी आप डिराइव कर सकते हैं ईसीजी से, लेकिन ईसीजी मस्कुलर एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. So coming to the last diagram of NCERT textbook, how the circulation is occurring in entire human body. So representing our heart, जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूं आपको एक रेक्टेंगल के थ्रू. ऊपर की साइड we have our lungs, नीचे की साइड we have our tissue. Just a representation of what has been represented in the diagram itself. Fine. So यहाँ पे oxygenated blood को मैं आपको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट हैपेंस इज वी आर हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रिया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. पूरा सर्कुलेशन आपको बताऊंगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, नॉट एट्रिया, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? एओर्टा में. अगेन एओर्टा घूम के ऊपर से आता है, बट बिकॉज दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव डायग्राम तो मैं सीधा सीधा साइड से आपको दिखा रहा हूं. एओर्टा में ब्लड गया, एओर्टा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स ऑल योर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, व्हाटएवर थिंग्स दैट द बॉडी रिक्वायर्स. सारी की सारी चीजें टिश्यूज में चली गई. अब टिश्यूज वो ऑक्सीजन यूज करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा. सो एक बार वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा टिश्यू, तो हमारा अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लू में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रिया में जाएगा. राइट एट्रिया, द राइट एट्रिया रिसीव्स योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यहां पे राइट एट्रिया में वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जाएगा? फिर ये जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा. जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब घूम के लंग्स की तरफ जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन. So this deoxygenated blood that I'm showing you with dotted line, वो हमारा लंग्स में चला गया. अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया था, एल्विलाई में एक्सचेंज होगा, और जैसे एल्विलाई में एक्सचेंज होगा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा. Now this oxygenated blood comes to the left side of the heart, that is left atria. Now which vessel is bringing this oxygenated blood? That is your pulmonary vein. And which was the vessel that was carrying out the deoxygenated blood from right side? That was your pulmonary artery. Fine. So ये हो गया आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन. अब इस सर्कुलेशन में जो भी चीज मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की है, मतलब कि ये वाला पार्ट डॉटेड लाइन, जो भी चीज मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, रेड और ब्लू दोनों डॉटेड लाइन से, इट रिप्रेजेंट्स योर पल्मनरी
सर्क्यूलेशन, और जो भी मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया इट रिप्रेजेंट्स योर सिस्टमिक सर्क्यूलेशन. सो बात समझे, बहुत सिंपल है. जो भी ब्लड लंग में जा रहा है और लंग से जो भी ब्लड आ रहा है वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाएगा, और जो भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर टिश्यूज में घूम रहा है और राइट एट्रिया में आ रहा है वो पूरा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन बनेगा. सो अगर आपको यही चीज मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, सो ओवर हियर वी हैव आवर लंग्स, over here we have our hearts, and finally these body parts that is being represented is nothing but the tissues that I drew in my slide. So pulmonary vein oxygenated blood लेके आएगा, वो जाएगा कहां पे? pulmonary vein carries its blood to the left atria. लेफ्ट एट्रिया से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा और वो एओर्टा से पूरे बॉडी में फैल जाएगा. नाउ व्हाट डज डोर्सल एओर्टा मींस? बेसिकली जो एओर्टा मेन ब्रांच है वो बहुत सारे ब्रांचेस देता है, और सारे ब्रांचेस निकलने के बाद जो चीज रह जाती है जो एब्डोमेन में जाएगी उसे हम डोर्सल एओर्टा बोलते हैं. सो डोर्सल एओर्टा इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ एओर्टा दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द हार्ट. फाइन. सो डोर्सल एओर्टा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाएगा और वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स, वेना कावा विच इज द ग्रेट वेन ऑफ आवर बॉडी, वेन सारे के सारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में लेके आएंगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये साइकिल चलता रहेगा. सो ऊपर हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन ओवर है, और नीचे हो गया हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डायग्राम इज टू थिंग्स. फर्स्ट तो ये पूरा सर्कुलेशन जो मैंने आपको बता दिया. दूसरी वेसल्स के बारे में जो यहाँ पे बता रखा है ये भी आप लोग ने समझना है. सो इस वेसल्स की जब हम बात करें तो एक चीज जो आपने नोट करना है वो ये है कि स्मूथ मसल लेयर हमारी आर्टरीज में बहुत ज्यादा थिक है. वाई? बिकॉज आर्टरीज कैरी ब्लड इन हाई प्रेशर. हाई प्रेशर में क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल ने अभी अभी ये ब्लड पंप किया है. जब वेंट्रिकल ने अभी अभी ये ब्लड पंप किया है तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में आ रहे हैं. तो वॉल्स हमारी जो आर्टरी की है वो थिक होनी चाहिए. ना सिर्फ स्मूथ मसल, सारे के सारे लेयर्स आर्टरी में थिक होता है. सो ब्लड इज ट्रैवलिंग इन हाई प्रेशर. एंड वहीं पे अगर हम ल्यूमेन और वेसल्स ऑफ वेन्स की बात करें, वेसल वॉल ऑफ वेन्स की बात करें, तो ये ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रहा है. सो इट इज कैरिंग ब्लड इन लो प्रेशर. सो व्हेन इट इज कैरिंग ब्लड इन लो प्रेशर मींस व्हाट? लो प्रेशर में ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब उसको उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना. सो यहाँ पे वॉल कंपैरेटिवली थिन होगी. वॉल थिन होगी तो ऑटोमेटिकली ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, वॉल थिक होता तो ऑटोमेटिकली ल्यूमेन छोटा हो जाएगा. सो नाउ रिमेंबर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. सो एमसीक्यू आ सकता है, फॉर अ 4 millimeter diameter blood vessel, lumen of which of the following would be larger? Lumen of which of the following will be larger? Lumen will be larger in. So एक 4 मिलीमीटर डायमीटर का एक ब्लड वेसल दे रखा है, तो ल्यूमेन किस में बड़ा होगा? आर्टरी में बड़ा होगा, वेन में बड़ा होगा, किस में बड़ा होगा? So the answer is for given diameter ल्यूमेन हमेशा वेन में बड़ा होता है देन आर्टरी. वो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो. जितना डायमीटर इस आर्टरी का है उतना ही डायमीटर इस वेन का भी है, लेकिन ल्यूमेन वेन में बड़ा है कंपेयर टू आर्टरी. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. फॉर अ गिवन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल ल्यूमेन विल ऑलवेज बी, ल्यूमेन मतलब बीच की कैविटी, विल ऑलवेज बी ग्रेटर इन वेन्स कंपेयर टू आर्टरीज. So those were all the diagrams of circulatory system. I'll see you guys again with next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. It's a new concept that we have brought to help you revise the diagrams. So if you find it helpful, do share it with your friends as well. And as many people we are able to reach, more motivated we will be to work and provide you with better videos. So do share it with your friends. Do like this video. And if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.